Hello friends, a warm welcome to you all. So today here we will discuss one more disease, that is peptic ulcer disease. So this PDF by which I will cover this topic definitely. It is given by our Dr. Rustom Chaudhary. Okay, so again very thanks to Dr. Rustom Chaudhary sir. Okay, for giving this PDF, this very important and very so interactive and informative PDF to all needy peoples. Okay, all needy students. So peptic ulcer disease include the two type of ulcer, gastric ulcer and duodenal ulcer. There is one more ulcer that is called a esophageal ulcer, but that is not included here because I will again define or explain all the things. So there are peptic ulcer disease include the two type of ulcer, gastric ulcer and duodenal ulcer. Gastric ulcer is not that much common, okay. और stomach ulcer, इसको भी हम commonly gastric ulcer को stomach ulcer भी बोलते हैं, and duodenal ulcer is more common compared to our gastric ulcer. Don't worry, I will explain each and every point to you all, okay, and you will not miss a single you can say important points from this topic. Okay, so peptic ulcer types, there are esophageal ulcer, there are duodenal ulcer, there is a you can say a kind of stomach ulcer. Okay, so you can see the esophageal ulcer when you have heard a kind of word like GERD, gastroesophageal reflux disease. When the gastric content come into the esophagus, they have a kind of SCL in the gastric content, and definitely when they go up leads to the perforation of the you can say inner lining of the epithelium of the esophagus, okay, and leads to the ulcer formation. So when there is a you can say gastric content, when the gastric content come up, definitely there is a GERD and leads to the esophageal ulcer. Okay, duodenal ulcer and gastric ulcer commonly हम यहाँ पे आप discuss करेंगे. There are two important factors they play a role in formation of this gastric you can say peptic ulcer disease. They are हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. ओके, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी दिस आर द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. ये क्या है? बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया क्या करता है? ये जितने भी एंजाइम्स प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स है ना, उनको डैमेजेस करेगा और अल्टीमेटली अल्सर को फॉर्म करेगा. यू कैन सी द ड्यूडल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफेजियल अल्सर. इसोफेजियल अल्सर डज नॉट कम अंडर द दिस काइंड ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज. ओके, so we will cover all the aspects of this PUD. Don't worry, peptic ulcer disease normally you can see the I just mentioned you कि there are two important things, hydrochloric acid and the helicobacter pylori. जो बैक्टीरिया है, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है अल्सर फॉर्मेशन करने के लिए, पहला ये. दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक यू कैन से जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी HCl जो फॉर्म होता है हमारे स्टमक में बाय आवर पैराइटल सेल और यू कैन से पैराइटल सेल, ऑक्सेंटिक सेल, जो भी कुछ फॉर्म होता है ना अपना HCl, वो इंटरनल लाइनिंग ऑफ जिस गैस जो स्टमक है उसमें डायरेक्टली कांटेक्ट ना करे. वी हैव अ काइंड ऑफ म्यूकस. ओके, तो जो भी म्यूकस वगैरह जो फॉर्म होता है ना, वो प्रोस्टाग्लैंडिस यू कैन से उसको स्टिमुलेट करते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिस स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ यू कैन से protective covering of the inner lining of the mucosa of the stomach, and definitely by consuming the NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drug, it include the like diclofenac, ibuprofen, okay, endomethacin and a kind of aceclofenac. These are the you can say NSAIDs. These are the you can say painkillers. When we are taking the prostaglandins 2, they get decreases and ultimately जो फॉर्म हो रहा है, जो म्यूकस फॉर्म हो रहा है, जो भी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है हमारा, वो कैसा है वो भी मैं आपको बताऊंगा. वो जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वो डिस्टर्ब हो रहा है विद दिस ड्रग. ओके, तो अल्टीमेटली लीडिंग क्या हो रहा है? HCl डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है इंटरनल लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम में, एंड देयर इज अ अल्सर फॉर्मेशन. इफ देयर इज अल्सर फॉर्मेशन लीड्स टू द perforation leads to the you can say hemorrhage. Okay, so there are certain complication if the ulcer is seen. Okay, so causes में NSAIDs है, helicobacter pylori है, you can see here peptic ulcer disease. Mainly two factors are very important, hydrochloric acid and helicobacter pylori. Okay, then again you can see that it damages the mucosa and it damages the cells which produces the digestive enzymes. Okay, and leads to the ulcer formation. Both का जो mechanism है, दोनों का mechanism मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ. No worry. So stomach can handle hydrochloric acid efficiently. How? Just I mentioned you. I will mention the mechanism by which it protects the damages. It protects the ulcer formation, so that the gastric ulcer is not that much common comparatively our duodenal ulcer. Okay, the stomach has their mucosa. Okay, and it is safe from the action of hydrochloric acid. Okay, it you all know very well alimentary canal have their mucosa, submucosa, muscularis, and you can say the last one is एरियोजा वगैरह जो भी कुछ लेयर है. देयर आर एलिमेंट्री कैनाल, वी हैव अ 4 लेयर. ओके, तो 4 लेयर सेल रहता है.
हर एक इंटरनल लाइनिंग में क्या है, म्यूकोजा लेयर है। तो म्यूकोजा लेयर है, म्यूकस सीक्रेट करता है। म्यूकस सीक्रेट क्या, जो म्यूकस सीक्रेट अल्टीमेटली म्यूकोजा जो होने वाला है वो म्यूकोजा के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में HCl ना है उसको क्या करता है, इनिबिट करता है। तो यू कैन सी है स्टमक has their mucus and it is safe from action of HCl, and definitely there are mainly due to this layer the mucus contain bicarbonate ion. These are the base, okay, prostaglandins. These are the, you can say, agents which definitely protects the inner lining of the epithelium with the hydrochloric acid. Okay, so what I want to say here ki this mucus layer protects the stomach from the direct contact of this HCl with this inner lining of the epithelium. Okay, again I will repeat, this mucus layer which is secreted by our this internal lining of epithelium only. Okay, this mucus layer protect the HCl from the direct contact with this inner lining of the epithelium. Okay, so that's why by this mechanism only the gastric ulcer is not that much common. Okay, तो why it is not that much common, because mucus protect कर रहा है HCl के direct contact with their internal lining of epithelium. Again one more thing, जो bicarbonate जो ion है ना SCO3 which can neutralize the acids. म्यूकस में क्या है, म्यूकस कैसे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रोल प्ले कर रहा है, हाउ इट प्लेइंग देयर रोल। डेफिनेटली जो बाइकार्बोनेट जो आयन है ना ये बेस है और Cl इज एसिड, सो देयर इज अ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स if there is too much production is there definitely, so which can neutralize the acids. But mucosa of the esophagus and duodenum are not safe from the increased level of HCl. So that's why esophageal ulcer and duodenal ulcer are common if HCl is more, not gastric ulcer. Okay, and that's why gastric ulcer mainly related to the Helicobacter pylori, तो along with that hydrochloric acid. तो अगर कोई गैस्ट्रिक अल्सर या फिर यू कैन से स्टमक अल्सर अगर फॉर्म हो रहा है तो दैट इज मेनली ड्यू टू द हेलिकोबैक्टर पायरोली ओनली, नॉट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड इट हैज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म म्यूकस वगैरह, बट इट ऑल्सो डैमेज विद द स्मोकिंग, विद अल्कोहल, विद NSAIDs, and that's why these are the, you can say, predisposing factors with the predisposing factor of our stomach ulcer. Okay, we have a protective mechanism, but if we are not taking care of that, definitely we will develop a stomach ulcer. Still we have a kind of protect mechanism. Okay, so how stomach mucosa protect itself from increased HCl? Just I mentioned, we have a protective factors here, mucus है, बाइकार्बोनेट्स आयन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स एंजाइम्स हैं, जो भी अल्टीमेटली इनको हम क्या बोल रहे हैं, म्यूकस के अंदर ये सभी आते हैं। एंड म्यूकस ये क्या करता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में जो HCl का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो उसको क्या करता है, रोकता है। ओके, एंड नाउ यू कैन सी द गैस्ट्रिक एसिड, pepsin, increased level of Helicobacter pylori, NSAIDs and oxidative states, they increases the HCl formation. Stress is also increases the formation of HCl. Okay, so when there is too much of HCl formation, definitely this protective factor will not play that much role. Okay, and that's why there is a ulcer formation. Okay, and there is a mucosa get damages and form with the ulcer. Okay, so you can see here protective factors, जैसा आई मेंशन, म्यूकस लेयर है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्म करता है। ओके, एंड जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये ब्लड सप्लाई इंक्रीजेज द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ओके, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के टुवर्ड्स जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ा देता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नाउ ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो फॉर्मेशन जो हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो रोल प्ले करता है किडनी में या फिर स्टमक में, डेफिनेटली ये NSAIDs जो ड्रग होते हैं ना, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं ना, इनके वजह से ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो सिक्रेशन होती है या फिर सिंथेसिस जो होता है ना वो कम हो जाता है, एंड लीड्स टू द डिक्रीज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड देयर इज अ डिक्रीज सप्लाई ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा. ओके, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नॉट दैट मच इम्यूनिटी गेन टू द म्यूकस विद द for the protective mechanism from the HCl to the internal lining of epithelium. Okay, so that's why there is a repair of mucosa and there is no ulcer formation when there is you can say proper level of, or you can say proper function of prostaglandins is there. Okay, so protective factors में म्यूकस है, बाइकार्बोनेट्स आयन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ब्लड सप्लाई प्रोस्टाग्लैंडिन्स दोनों बढ़ाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स यू कैन से फॉर्म द बाइकार्बोनेट्स आयन एंड इट्स ऑल्सो इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द इंटरनल लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम. ओके, aggravating factor, जैसा I said, increase level of HCl, Helicobacter pylori. Stress is also increases HCl. How? जस्ट आई विल मेंशन यू कि जो वेगस नर्व जो सप्लाई करते हैं ना स्टमक को, डेफिनेटली ये स्ट्रेस में वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है. स्टिमुलेट होने के बाद ये गैस्ट्रिक सेल्स को क्या करता है,
स्टिमुलेट करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ HCl. ओके, एंड NSAIDs में लाइक इंक्लूड एस्पिरिन, ibuprofen. They are normally decreases the prostaglandin inhibitors. They are prostaglandin inhibitors, and if they get inhibited, definitely there is no bicarbonate ion, there is no blood supply to the you can say mucosa layer, and that's why the direct contact of the HCl with the inner lining may seen. Okay, so you can see the decreased prostaglandins due to the NSAIDs. Just it is a mention due to the NSAIDs there is a decreased PG, there is a decreased prostaglandins. Okay, and there is पेन रिलीफ के लिए हम लेते हैं, बट देर इज एनाल्जेसिक इफेक्ट तो मिलेगा, बट जो आपका जो ये अल्सर का जो है ना, डेफिनेटली टेम्परेचर कम हो जाएगा, फीवर कम हो जाएगा, एंटीपायरेटिक इफेक्ट, एनाल्जेसिक इफेक्ट मिलेगा, बट ड्यू टू द NSAIDs देयर इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिशन होता है, एंड ब्लड एंड बाइकार्बोनेट आयंस कम हो जाते हैं, एंड देयर इज अ अल्सर फॉर्मेशन. ओके, सो यू कैन सी द नाउ जस्ट हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाउ इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम द अल्सर फॉर्मेशन. नाउ लेट्स सी द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैसे अपना ये रोल प्ले करता है, कैसे ये अल्सर को फॉर्म करता है. तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ऐसा कुछ दिखाई देता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू है इसका. नाउ यू कैन सी द जस्ट आई मेंशन यू पेप्टिक अल्सर डिसीज में NSAIDs एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे आर मेनली प्लेइंग देयर रोल. NSAIDs decrease the PG, and there is a decrease the bicarbonate ion, decrease the blood supply and ulcer formation. Okay, so peptic ulcer includes there causes the Helicobacter pylori. Okay, non-steroidal inflammatory drug that is called NSAIDs. मेल्टेड स्टेट्स ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, एंड वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा तो एसिड के प्रोडक्शन ज़्यादा, अल्सर as much as acid is there, too much of acid or too much of HCl is there, definitely there is too much of chances for this formation of ulcer. Okay, smoking, alcohol and genetically also some people में देखा गया है कि अगर एक को अल्सर पेप्टिक अल्सर डिसीज है, डेफिनेटली फ्यूचर में हो सकता है. तो स्मोकिंग, अल्कोहल डायरेक्टली जो म्यूकोसा जो होता है, जो म्यूकस जो फॉर्म कर रहा है, डेफिनेटली डायरेक्टली वो डैमेज करता है, और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में HCl और इनर लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम आ जाता है. Smoking or alcohol directly damages the mucus. Okay, so you can see here risk factor or causative factor of peptic ulcer, Helicobacter pylori, increased level of HCl, NSAIDs जैसे मैंने आपको बताया. स्ट्रेस कैसे करता है, वेगस में स्टिमुलेट होता है एंड गैस्ट्रिक जूस बढ़ जाता है, और HCl बढ़ने की वजह से देयर इज अ यू कैन से लीड्स टू द अल्सर फॉर्मेशन. ओके, ज़्यादा एसिड भी रहेगा तो म्यूकस कितना प्रोटेक्ट करेगा, ओके, म्यूकोसा को, तो दैट इज कॉल्ड नोन एज कशिंग अल्सर. So direct damage by smoking and alcohol. Okay, just I mentioned you smoking and alcohol directly damage the mucus, and that's why when the mucus get damaged, so direct contact of HCl may seen. Burn is also you can say increase the chances of ulcer formation. Burn कैसे, blood volume कम हो जाता है बर्न में, and blood volume कम हो जाएगा तो blood supply कम हो जाएगा. तो blood supply कम हो जाएगा तो जो रिपेयरमेंट जो होता है सेल्स का, डेफिनेटली वो कम हो जाएगा, एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ अल्सर फॉर्मेशन. ओके, सो क्लिनिकल फीचर्स में अगर आप पीयूडी की अगर बात करें तो गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर जैसे इसमें आता है. मेन क्लिनिकल फीचर्स में इसमें एपिगैस्ट्रिक पेन आएगा पेशेंट को. ओके, पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन आएगा जस्ट बीनीथ द ज़िफिस्टेनम. ओके, जस्ट बीनीथ द ज़िफिस्टेनम जो अपना पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द एपिगैस्ट्रिक रीजन. ओके, तो वी हैव अ 9 एब्डोमिनोपेल्विक रीजन. ओके, एपिगैस्ट्रिक रीजन, राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. ओके, देन अम्बिलिकल रीजन है, देन राइट एंड लेफ्ट यू कैन से लंबार रीजन है, देन वी हैव अ काइंड ऑफ यू कैन से पेल्विक रीजन, उसके बाद राइट एंड लेफ्ट इलियाक रीजन. तो ये 9 रीजन में जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है ना, एपिगैस्ट्रिक रीजन जस्ट बीनीथ द ज़िफिस्टेनम, उसमें पेशेंट को बहुत ही पेन होगा. तो एपिगैस्ट्रिक पेन, दिस आर द प्रिडोमिनेंट सिम्टम्स सीन इन द पीयूडी. तो बर्निंग इन अपर एब्डोमेन, ब्लोटिंग रहेगा पेशेंट को. अभी ये सभी कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ. ब्लोटिंग क्यों रहेगा, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें हैम्पर होगा, एंड दैट्स व्हाई लीड्स टू द इंडाइजेशन लीड्स टू द ब्लोटिंग. हार्ट बर्न रहेगा पेशेंट को ड्यू टू द GERD. ओके, देन नोजिया एंड वोमिटिंग पेशेंट को लगेगा. डार्क स्टूल भी हो सकता है, बिकॉज अगर टू मच ऑफ HCl अगर रहेगा, अगर आप स्मोकिंग है या फिर अल्कोहलिक कंज्यूमिंग पेशेंट है या फिर कोई बंदा है, तो डेफिनेटली अल्सर फॉर्म होगा. अल्सर फॉर्म लीड्स टू द परफोरेशन लीड्स टू द हिमोरेज. तो ब्लीडिंग अगर थोड़ा भी हुआ रहेगा तो डेफिनेटली जो स्टूल रहेगा ना, वो डार्क स्टूल आएगा. ओके, दैट इज कॉल्ड द मेलिना. अनएक्सप्लेन पेशेंट का वेट लॉस भी हो सकता है, देख सकते हो ब्लैक स्टूल आएगा, दैट इज कॉल्ड द मेलिना. सो यू कैन सी हियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से फ्रॉम द अल्सर देयर इज अ हिमोरेजिस कॉम्प्लिकेशन एंड लीड्स टू द मेलिना. तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लोटिंग कैसे आ रहा है,
सो सेंस ऑफ एब्डोमिनल फुलनेस दैट इज कॉल्ड ब्लोटिंग। तो ड्यू टू इनडाइजेशन, कैसे अभी देखते हो मैं बताता हूँ आपको। सिंस पीयूडी में HCl बढ़ा हुआ रहेगा, ओके, HCl बढ़ा होता है तो क्या होता है, इंटेस्टिनल जूस, पैंक्रेटिक जूस, बाइल जूस जो भी कुछ ड्यूडेनम के अंदर आके मीट करेंगे, HCl ज़्यादा रहेगा तो बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम अगर बराबर है तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, और न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो फूड का डाइजेशन प्रॉपर होगा। बट अगर HCl बहुत ज़्यादा है और बेसिक मीडियम जितना आता है उतना ही फॉर्म हुआ, डेफिनेटली ये बेसिक मीडियम अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, एसिडिक मीडियम, ओके। तो इट मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड लीड्स टू द जो भी इंजाइम्स वगैरह होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सिंस एंड दैट्स व्हाई एंजाइम्स यूज इन डाइजेशन विल नॉट वर्क प्रॉपरली एंड लीड्स टू द इनडाइजेशन एंड दैट इज कॉल्ड ब्लोटिंग, सेंस ऑफ फुलनेस ऑफ एब्डोमेन, ओके। पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, अपर एब्डोमिनल पेन, इट इज रिलेटेड टू द फूड इनटेक, ओके, इट इज रिलेटेड टू द फूड इनटेक बिकॉज ये भी मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा। जस्ट आई विल मेंशन यू दिस रीजन एज वेल। एपिगैस्ट्रिक पेन पेशेंट को क्यों होता है, जस्ट वी आर एज सुन एज वी आर टेकिंग फूड और मील देयर इज अ एपिगैस्ट्रिक पेन पेशेंट को होने लगता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। गैस्ट्रिक अल्सर में पेन बढ़ जाता है व्हेन फूड वी आर टेकिंग, बट ड्यूडेनल अल्सर में जब फूड का डाइजेशन होता है या फिर फूड जब हम लेते हैं तो पेन कम रहता है, ओके। गैस्ट्रिक अल्सर में फूड जब हम लेते हैं तो पेन बढ़ जाता है, ड्यूडेनल अल्सर में जब फूड हम लेते हैं तो पेन कम हो जाता है। इसका मैकेनिज्म है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ब्लोटिंग और इंडाइजेशन इंक्रीजेज विद HCl, मेलिना, हिस्ट्री ऑफ पैसेज ऑफ डार्क और ब्लैक स्टूल, ओके, ड्यू टू द अपर GIT ब्लीडिंग फ्रॉम दैट अल्सर में सीन, ओके। पेशेंट को थोड़ा सा अल्सर वगैरह हो सकता है या फिर इसोफेजियल अल्सर हो सकता है एंड लीड्स टू द ब्लीडिंग, लीड्स टू द मेलिना, लीड्स टू द डार्क स्टूल। तो यूजुअली देख सकते हो वेट लॉस ड्यू टू द इनडाइजेशन, मेनली पेशेंट का न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर नहीं हो रहा है, पेशेंट एनोरेक्सिया करेगा, पेशेंट का लो एपेटाइट रहेगा, सम वेट गेन स्पेशली इन आवर ड्यूडेनल अल्सर देखने को मिलता है। तो ये सभी का मैकेनिज्म है, आपको मैं बताता हूँ हाउ टू डिफरेंशिएट ड्यूडेनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर क्लिनिकली। तो यू कैन सी द गैस्ट्रिक अल्सर मोर देन 40 ईयर्स, ड्यूडेनल अल्सर 20 to 50 ईयर्स के बीच में रहेगा। एज फैक्टर है ये। फूड में देख सकते हो, फूड एज सुन एज वी आर टेकिंग फूड डेफिनेटली पेन गेट एग्रेवेट एंड इसमें पेन कम हो जाता है। HCl एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसमें मेनली जैसा सेट गैस्ट्रिक अल्सर का खुद का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है एंड दैट्स व्हाई HCl इसमें रोल प्ले नहीं करता है अल्सर फॉर्मेशन में, इसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी रोल प्ले करता है। और ड्यूडेनल अल्सर में जो भी HCl फॉर्म हुआ है स्टमक से जब आता है तो इसका कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है ड्यूडेनम में, तो डायरेक्टली डैमेजेस द म्यूकोजा एंड लीड्स टू द अल्सर फॉर्मेशन इन ड्यूडेनम, ओके। हार्ट बर्न पेशेंट को लेस कॉमन रहेगा काइंड ऑफ इसमें, बट मोर कॉमन इन आवर ड्यूडेनल अल्सर, ओके। नाइट पेन यू कैन सी द लेस कॉमन, मोर कॉमन, ओके। एम्प्टी स्टमक पेशेंट को मोर कॉमन, एम्प्टी स्टमक पेशेंट को फूड जब लेगा तब नहीं होगा, लेकिन जैसे ही खाना कम खाना स्टार्ट किया लीड्स टू द एम्प्टी स्टमक। आई विल अगेन एक्सप्लेन द व्हाई इट इज हैपनिंग। सो इफ आई मेंशन यू व्हेन वी आर टेकिंग द फूड, सो देयर इज द HCl फॉर्मेशन। तो एज सुन एज HCl फॉर्मेशन हो गया है तो जो भी कुछ इंटरनल लाइनिंग जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करेगा। तो जो अगर गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है हमें, ओके, अगर गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है तो व्हेन वी आर टेकिंग द फूड तो HCl फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो उसका जो सिम्टम्स है, एपिगैस्ट्रिक पेन जो भी सिम्टम मैंने आपको बताया वो बढ़ जाएगा, इजीली बढ़ जाएगा। बट ड्यूडेनल अल्सर जो बना हुआ है एज वी आर टेकिंग द फूड, डेफिनेटली जो HCl जो आने वाला है आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, यू ऑल नो वेरी वेल the amount of food whatever we are taking, it will as you can say resides in stomach for certain period of time, for certain duration. So that's why as much HCl come into the duodenum, they come as in dilution form, okay. So तो diluted HCl duodenum में आने वाला है and that's why there is not that much you can say effect seen, but एज सुन एज के डाइजेशन इज कम्प्लीटेड, डाइजेशन प्रोसेस जब खत्म हो जाता है ना, तो जो भी HCl जो ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में या फिर बॉडी में HCl फॉर्म कब होता है, जब बॉडी में खाना वगैरह लेते हैं तभी HCl फॉर्म होता है, ऐसा नहीं। लिटिल अमाउंट ऑफ HCl फॉर्मेशन इज ऑलवेज देयर, ओके। एंड दैट्स व्हाई you may notice कि whenever we are not taking any meals, still we have a kind of you can say heartburn like complaint, okay. So that's why it is mentioned here more common empty stomach means जैसे ही पेशेंट का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी HCl जो थोड़ा बहुत फॉर्म हुआ रहता है ना, उसको डाइल्यूशन करने के लिए अभी हमने कोई मील वूल नहीं लिया है, और भी हमने कोई खाना वाना नहीं लिया है। तो खाना डाइजेस्ट हो गया है, हम कोई मील वगैरह नहीं ले रहे, खाना नहीं ले रहे, तो जो भी HCl जो फॉर्म होता है स्टमक में वो डायरेक्टली ड्यूडेनम में आएगा और डायरेक्टली ड्यूडेनल अल्सर को क्या करता है, काइंड ऑफ इफेक्ट करता है। एंड दैट्स व्हाई एम्प्टी स्टमक के पेशेंट को इसमें नाइट पेन पेशेंट को होता है, इसमें नहीं होता है, ओके। हंगर पेन पेशेंट को
देख सकते हो मोर कॉमन, लेस कॉमन। एनोरेक्सिया पेशेंट को मोर कॉमन रहेगा इसमें, क्योंकि जैसे ही पेशेंट ले रहा है तुरंत उसको पेन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है वो खाना नहीं लेगा। ओके, पेशेंट का वेट लॉस इसमें कम होगा। लेकिन इसमें ड्यूडेनल अल्सर में पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट का जो खाना लेता है तो पेन कम हो जाएगा। तो एज मच एज ही विल टेक, ओके, एज मच द मोर एंड मोर ही विल टेक, because as soon as he taking the meal or consuming any kind of meal or food articles, definitely जो duodenal ulcer है वो you can say dilution effect आ रहा है HCl का, and there is no symptomatic सिम्टम सीन। ओके, एंड दैट्स वाई एनोरेक्सिया पेशेंट को रहता है गैस्ट्रिक अल्सर में और ड्यूडेनल अल्सर में नहीं रहता है। तो फूड जो है पेन बढ़ाता है एंड लीड्स टू द, दैट्स वाई पेशेंट नहीं लेगा। वेट लॉस पे देखने को मिलेगा गैस्ट्रिक अल्सर में, और इसमें देखने को नहीं मिलता है। So you can see here, as soon as we are taking the food, gastric ulcer directly वो डैमेज, as soon as we are taking the food definitely there is a HCl formation बढ़ जाएगा। तो HCl formation बढ़ जाएगा तो गैस्ट्रिक अल्सर जो अगर हुआ भी रहेगा तो वो उसको डायरेक्टली यू कैन से अप टू सम एक्सटेंट तो डैमेज करेगा ही करेगा। ओके, सो दैट्स वाई अल्सर गेट यू कैन से इरिटेट व्हेन वी आर टेकिंग द फूड। बट पेशेंट का एम्प्टी स्टमक में पेशेंट को इसमें पेन होता है ड्यूडेनल अल्सर में। जैसे आई मेंशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंक्रीजेस एट ड्यूडेनम विल डिप्रेस द अल्सर। एम्प्टी स्टमक में पेन बढ़ जाएगा क्योंकि डाइल्यूटेड जो HCl है वो ड्यूरिंग डाइजेशन आएगा ड्यूडेनम के पास, अदरवाइज नहीं आता है। ओके, अदरवाइज एम्प्टी स्टमक में तो प्योर फॉर्म आएगा, तो इसलिए एम्प्टी स्टमक में पेशेंट का पेट बढ़ेगा। ओके, तो फूड जो है यू कैन से फूड डाइल्यूटेड द HCl and that's why it damages, and that's why damages will be lesser and pain relief होगा पेशेंट को। in our duodenal ulcer patient will take more and more food, patient will consume more and more food, and that's why there is a weight gain। तो मैनेजमेंट ऑफ PUD की अगर बात करें, आफ्टर डिस्कसिंग द होल एस्पेक्ट ऑफ दिस PUD देर आर इन्वेस्टिगेशन एंड देर इज अ ट्रीटमेंट। यू कैन से ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन में देख सकते हो देर इज अ एंडोस्कोपी, एंड एंडोस्कोपी हम क्यों करेंगे, कोई अल्सर वगैरह फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। Once we know कि there is ulcer formation, now we will rule out the kind of why it is happening। okay, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को हम डिटेक्ट करेंगे, और दूसरा हम पेशेंट को यू कैन से एंटासिड्स या फिर जो यू कैन से जो भी अपना ट्रीटमेंट जो HCl को जो फॉर्म कम करेगा या फिर HCl की सिक्रेशन को जो कम करेगा वो सभी ड्रग स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो जैसे आई मेंशन यू देयर आर टू वे ओनली फॉर दिस PUD, आइदर देयर है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, देयर सेकंड वन इज HCl का फॉर्मेशन। तो HCl का फॉर्मेशन कम करेंगे और अपन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से अगर वो अल्सर हुआ है तो डेफिनेटली हम एंटीबायोटिक देंगे। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन चॉइस में एंडोस्कोपी से नॉर्मली हम पता कर लेते हैं कि अल्सर वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है। एक बार वंस वी नो कि देर इज अल्सर फॉर्मेशन, तो डेफिनेटली वी हैव टू रूल आउट आइदर इट इज कॉज बाई HCl और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। सो एंडोस्कोपी, ड्यूरिंग एंडोस्कोपी हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपी में हम एक ट्यूब वगैरह डालते हैं। ट्यूब वगैरह डालने पे ट्यूब के टिप पे कैमरा लगा रहता है और लाइट एक सोर्स रहता है। ओके, लाइट का एक सोर्स रहता है और कैमरा लगा रहता है। तो ड्यूरिंग एंडोस्कोपी वी आर विजुअलाइजिंग दैट यू कैन से इनर एस्पेक्ट ऑफ दैट स्टमक और ड्यूडेनम इन द स्क्रीन, इन द यू कैन से स्किन वगैरह पे देखते हैं उसको। जो भी एंडोस्कोपी जो लॉजिस्ट वगैरह जो या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये सभी एंडोस्कोपी वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो डायरेक्टली कैमरा लगा हुआ रहता है और डायरेक्टली उसका कॉन्टैक्ट PC के साथ में रहता है। ओके, तो स्क्रीन में वो पूरा इंटरनल लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम कैसा है सब दिखाई देता है, और अल्सर वगैरह अगर हुआ रहेगा ना तो डेफिनेटली वी कैन रूल आउट विद द एंडोस्कोपी। सो अगर अल्सर हुआ रहेगा तो अभी इसको चेक करना है कि वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से है या फिर HCl से है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से अगर कोई रहेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, देयर आर टू टेस्ट, यूरिया ब्रिथ टेस्ट एंड रैपिड यूरियस टेस्ट। तो रैपिड यूरियस टेस्ट अभी के टाइम में बहुत ही कॉमन हो गया है। रैपिड यूरियस टेस्ट, पेशेंट को अल्सर है, पेशेंट को अल्सर हम रूल आउट करेंगे विद देयर सिम्टम्स। पेशेंट को सिम्टम बहुत दिनों से है तो अभी हम अल्सर रूल आउट करेंगे। अल्सर को रूल आउट करने के लिए एंडोस्कोपी करेंगे। एंडोस्कोपी करने के लिए वी हैव टू पुट द ट्यूब्स। ओके, तो एंडोस्कोपी करेंगे। अल्सर एक बार नोटिस हो गया, अभी नोटिस हो गया अल्सर, तो डेफिनेटली वी विल ब्रिंग अ काइंड ऑफ सैंपल फ्रॉम दैट ट्यूब ड्यूरिंग एंडोस्कोपी। सो वो जो सैंपल आएगा ना डेफिनेटली उससे हम रैपिड यूरियस टेस्ट करेंगे। ओके, सो यू कैन सी हियर ट्रीटमेंट में डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वी कैन से
तीखा वगैरह नहीं लेने का, इससे HCl बढ़ेगा। ओके, सो जो भी एनसेट्स वगैरह ड्रग है, पेशेंट को अल्कोहल है, स्मोकिंग है, सब कम करने बोलेंगे। ओके, और H2 ब्लॉकर और प्रोटोन पम्प इनहिबिटर पेशेंट को लेने बोलेंगे। PAN40 ऑनडैम वगैरह जो भी कुछ ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। एंटासिड्स, इट न्यूट्रलाइजेज द एसिड सिक्रेशन, सो दैट्स व्हाई एंटासिड्स आल्सो वी आर गिविंग हियर। H2 blockers we are giving the PPI drugs. If there is a ulcer due to the HCl, if there is a ulcer due to the Helicobacter pylori, we will perform the rapid urease test. We not aware with the ulcer, is there any if that ulcer is with the HCl or Helicobacter pylori. So during the endoscopy we will remove we will take out a sample for this board test. Okay, so you can see here, if deep ulcer is there, so perforation may happen and there is a surgical treatment may require. Investigation choice में देख सकते हैं एंडोस्कोपी। ड्यूरिंग एंडोस्कोपी जैसा शेड यू कि रैपिड यूरियस टेस्ट के लिए एंडोस्कोपी से हमें मटेरियल निकालना पड़ेगा, उसकी टेस्टिंग करते हैं। सो लेट्स सी द अपर GI एंडोस्कोपी। यू कैन सी द फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप हम पेशेंट डालते हैं। एट द टिप देयर इज अ camera is there, okay, and you can see here, and they will rule out whether there is any ulcer or not. Okay, तो एंडोस्कोपी आदर नेजल और ओरल वगैरह हम डालते हैं। डालने के बाद स्टमक में कोई अल्सर वगैरह है क्या नहीं, उसको हम देखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अपर GI एंडोस्कोपी। ओके, कभी कभी गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी भी बोलते हैं। सो यू कैन सी द हेलिकोबैक्टर पायलोरी गैस्ट्राइटिस, इन्फेक्शन, रेडनेस अगर रहता है म्यूकोसा में, तो डेफिनेटली इट इज़ ड्यू टू द हेलिकोबैक्टर पायलोरी। सो नॉट ओनली दिस हेलिकोबैक्टर पायलोरी की वजह से भी रहता है, इट इज़ ड्यू टू द HCl वगैरह से भी हो सकता है, तो हमें पता नहीं है। तो एंडोस्कोपी से हम सैंपल रूल आउट करेंगे, और रूल आउट करने के बाद रैपिड यूरियस टेस्ट करेंगे। रैपिड यूरियस टेस्ट अगर निगेटिव आएगा तो डायरेक्टली अल्सर जो है वो हम बोल सकते हैं कि HCl के फॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है। सो वी कैन इमीडिएटली स्टार्ट द ट्रीटमेंट PPI, H2 ब्लॉकर्स, एंटासिड्स वगैरह। ओके, सो नॉर्मली इतना रेडनेस वगैरह नहीं देखने को मिलता है। तो यू कैन सी द डायरेक्टली जो हम ट्यूब डालते हैं ना, इसमें कैमरा लगा हुआ रहता है, लाइट भी रहता है, तो ये जो कैमरा लगा रहता है इसमें डायरेक्टली कांटेक्ट होता है ये PC वगैरह के साथ। तो अल्सर वगैरह अगर इसमें रहेगा तो स्किन के ऊपर दिखाई देता है डायरेक्ट। ओके, सो लेस कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, पेशेंट को नॉर्मली ग्रेटर कर्वेचर पे, यू कैन सी हियर दिस इज अ लेसर कर्वेचर पे कम कॉमन होगा, ग्रेटर कर्वेचर में मेनली ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो गैस्ट्रिक अल्सर, स्टमक अल्सर मोर कॉमनली सीन ओवर द ग्रेटर कर्वेचर। ओके, so normal upper GI endoscopy, you can see here view of esophagus, view of duodenum and view of stomach. There is no ulcer formation, there is no white वगैरह, so there is proper rugae. So during your first year you have seen you may seen these kind of things. rugae यानी कि internal lining of epithelium जो रहता है ना, उनका खुद का एक लेयर होता है, that is called as rugae, and this, as much as this rugae is there is more protective mechanism of the stomach. Okay, सो गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह ऐसा कुछ दिखाई देता है, एज मच एज रेडनेस, ब्लीडिंग लाइक कंडीशन। ओके, दैट इज कॉल्ड द गैस्ट्रिक अल्सर। सो अभी हेलिकोबैक्टर पायलोरी टेस्ट के लिए देर आर 2 थिंग्स, जस्ट यू शुड नो। हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो हम रैपिड यूरियस टेस्ट जो बोल रहे हैं ना, उसका मतलब क्या है। सो रैपिड यूरियस टेस्ट में स्पेशल इंजाइम्स होता है, यूरियस इंजाइम्स। ओके, ये क्या करता है, यूरिया को स्प्लिट करेगा, ये एक इंजाइम से। ओके, तो रैपिड यूरियस टेस्ट में देख सकते हैं इनविजिट टेस्ट से एंडोस्कोपी वगैरह डाला, एंडोस्कोपी से क्या करते हैं, स्मॉल गैस्ट्रिक म्यूकोसा टेकन आउट फॉर हेलिकोबैक्टर पायलोरी एग्जामिनेशन। ओके, सो एंडोस्कोपी जो भी मटेरियल हमने निकालते हैं ना, उसको क्या करते हैं, एंडोस्कोपी किया, बायोप्सी जो मटेरियल निकाला, सैंपल कैन बी टेस्टेड फॉर हेलिकोबैक्टर पायलोरी। तो जो भी हमने बायोप्सी सैंपल निकाला ना, उसमें हम क्या करते हैं, वो एक किट वगैरह में रखते हैं, और उस किट में यूरिया वगैरह रहता है। तो यूरिया वगैरह अगर रहेगा, तो अगर यूरिया के रिएक्शन के बाद अगर ऐसा कुछ आता है, तो किट अगर रेड कलर का हो जाता है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव हेलिकोबैक्टर है उसमें, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट अगर येलो कलर का आएगा तो डेफिनेटली उसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम बोल सकते हैं। तो यू कैन सी हियर ऐसा कुछ किट आता है। इस किट में हमें क्या करना रहता है, जो भी सैंपल हमने लिया है वो सैंपल इसमें डालना रहता है, और अगर ये मतलब नॉर्मली येलो कलर का रहता है, बट अगर इट टर्न्स इनटू द रेड कलर, डेफिनेटली उसमें काइंड ऑफ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, एंड इट टर्न इनटू द रेड कलर, एंड दैट कंफर्म किए हेलिकोबैक्टर पायलोरी के जैसे हो रहा है, एंड दिस अल्सर इज ड्यू टू द हेलिकोबैक्टर पायलोरी, एंड दैट्स व्हाई वी विल कंफर्म द रैपिड यूरिया टेस्ट पॉजिटिव। सो ऐसा कुछ किट वगैरह आता है। सो यू कैन सी द नेगेटिव विद द येलो, पॉजिटिव विद द रेड। ओके, सो
यूरिया ब्रीथ टेस्ट में अगेन दैट इज़ नॉट दैट मच कॉमन. इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को यूरिया वगैरह इनहेल करने के लिए कुछ बोलते हैं. दैट इज़ नॉट दैट मच कॉमन. यू शुड नो द मेडिकल मैनेजमेंट. सो मेडिकल मैनेजमेंट में पेशेंट को हम क्या करते हैं, PPI PAN40 वगैरह ड्रग लेने को बोलते हैं. सो दैट यू शुड नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द हाउ द HCl इज प्रोड्यूस. सो अगर HCl कैसे प्रोड्यूस होगा ये पता है तो कैसे उसको स्टॉप करना ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करता है, डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है HCl के फॉर्मेशन को. H2 ब्लॉकर जो H2 जो हिस्टामाइंस वगैरह रहते हैं वो भी डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं HCl के फॉर्मेशन को. तो ये सभी ड्रग्स आपको डायरेक्टली H2 ब्लॉकर लेना है जो स्टिमुलेट कर रहा है. स्टिमुलेटिंग फैक्टर जितने भी आपको स्टॉप करना है. ओके. और जो भी HCl जो फॉर्म हो रहा है वो भी एज मच एज आपको कम करना है बाय गिविंग एंटासिड्स. सो इनवेजिव डिटेक्शन मेथड एंडोस्कोपी, बायोप्सी लिया, टेस्टिंग के लिए हमने ले लिया. ओके. और नॉन इन्वेजिव में यूरिया ब्रीथ टेस्ट ये है. बाकी इतना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मेडिकल मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए. आपको PPI PAN40 पेंटाप्रोजोल है. देन वी हैव अ काइंड ऑफ लिविनोप्रोजोल, वी हैव अ काइंड ऑफ ओमेप्रोजोल. So that medication we are giving for up to 3 months, 4 months. But if the test is positive, rapid urine test is positive, definitely we are giving the augmentin like antibiotic. Okay. So amoxicillin and clavulanic acid like antibiotic we have to give to the patient if there is a rapid urine test is positive. Okay. So that is all about for our this PUD disease, pelvic ulcer.